Morning students. Chapter number 3, Atoms and Molecules. I hope whatever the videos I have sent you have understood. Now again I'll explain it with the help of this textbook. This is very important chapter. Okay. Now ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Now students, चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी देखा था कि व्हाट इज़ मैटर, राइट। मैटर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है कोई भी मटेरियल का, उसको हम मैटर बोलते हैं। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानड़ postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. अब कोई भी एक पार्टिकल को अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, वी विल गो ऑन डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, ओके, हम तब तक उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हम उस पार्टिकल को और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट पार्टिकल, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, ओके, हम उसको हमारे नेक आई से नहीं देख सकते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट एटम, राइट। नाउ ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु। फर्स्ट जो है पार्टिकल को नाम दिया था परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पखुड़ा कत्तेयमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these particles atoms, meaning indivisible. All this based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century. Now, by the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Okay. Now, Democritus ने बताया कि ये जो डिवाइड जो नहीं हो पाता है पार्टिकल, उसने उसको नाम दिया है एटम्स, ठीक है। ये सब फिलोसफिकल कंसिडरेशन था, कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया था तब तक। अब उनको ये पता चला कि एटम्स जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। Now by the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Now, Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम हैं स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, इट कैन कम इन MCQs, ओके। परमाणु जो है वो नाम किसने दिया था? महर्षि कानड़ ने। डेमोक्रिटस ही गेव द नेम एटम, ओके। And Antoine L. Lavoisier, he laid the foundation of chemical sciences. Now we will come to laws of chemical combination. अब हमें केमिकल रिएक्शंस तो हमने बहुत सुना ही है, दो चीज़ मिलते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब उनमें कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। एंड व्हाट आर दे? Following two laws of chemical combination were established. First law is law of conservation of mass and the second law is law of constant proportion. These two laws we will study. Conservation of mass, from the word itself हमें ये नज़र में आ रहा है कि यहाँ पे मास जो है वो सेम रहता है, okay. What is it? Let's see. Is there a change in mass when a chemical change takes place? Now take one of the following sets x and y of chemicals. ये x, ये y, ठीक है। अब हमें इसका कोई भी x में से कोई भी एक कंपाउंड ले लो, y में से कोई भी एक कंपाउंड ले लो, ठीक है। दोनों केमिकल लिया हमने, दोनों को हमें कंबाइन करना है। यहाँ पे देखा है इसका प्रोपोर्शन है 1.25 ग्राम्स, यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन है 1.43 ग्राम्स। Now, prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water.
Take a little amount of solution of Y in conical flask and same solution of X in ignition tube. ठीक है, यहाँ पे you can see ये कॉनिकल फ्लास्क है. अब हमें फर्स्ट क्या करना है, दोनों सोल्यूशन, दोनों केमिकल्स को 10 ml वाटर में मिक्स करना है. ठीक है, अलग अलग सेपरेटली. नाउ हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और एक इग्निशन ट्यूब लेना है. अब क्या होगा, इसमें हमें लेना है सोल्यूशन Y, ओके, एंड टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है सोल्यूशन X. अब क्या होगा, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क. ये जो इग्निशन ट्यूब है हमें उसको हैंग करना है अंदर. सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स. पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. अब what will be the reaction? Let's see what happens when weigh the flask with its contents carefully. अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, ये जो पूरा जो कॉनिकल फ्लास्क के साथ ये अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसका हमको वेट करना है. ओके, उसका वज़न करना है और उस वज़न को हमको नोट करना है. सपोज इट इज़ वेट 1. ठीक है, जो हमने दोनों को वेट लिया है एक साथ, उसको हम वेट 1 ले लेते हैं. अब हमें क्या करना है, उसके ये जो कॉनिकल फ्लास्क का जो रिएक्शन जो केमिकल है वो हमें मिक्स करना है इन द जो टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल है वो हमें मिक्स करना है कॉनिकल फ्लास्क में. अब दोनों रिएक्शन होगा. रिएक्शन होने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा. वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट हमने ये दोनों का वज़न किया एक साथ में विदाउट रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन नहीं करना है अभी तक. वेट 1 लिया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज मिक्स दिस केमिकल इनसाइड द कॉनिकल फ्लास्क. जब ये केमिकल इसके अंदर जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा. ओके, उसके बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन वी हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, वापस उसका वेट लेना, दैट इज़ वेट 2. what we will notice is weight 1 is equal to weight 2. ओके, उसका मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास का कोई भी चेंज नहीं हुआ. ये जो कॉर्क हमने डाला है ये इसलिए डाला है ताकि कोई भी रिएक्शन यहाँ से बाहर नहीं जा सके. इसलिए ये जो भी रिएक्शन हुआ है उनमें मास जो है वो कांस्टेंट रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना ही कोई एक्सटर्नल मास इसके अंदर आया है. फर्स्ट मास एंड द सेकेंड मास बोथ आर सेम. रिएक्शन के पहले का वेट एंड रिएक्शन के बाद का वेट, दिस बोथ आर सेम. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. Now law of constant proportion that means कि whenever we make anything, suppose we are making a cake, केक में शुगर का प्रोपोर्शन या फिर चॉकलेट का प्रोपोर्शन, ओके, वो सब सेम होता है. यस, प्रोपोर्शन केक बनाने में हमेशा सेम होना चाहिए, तो ये हमारा एक परफेक्ट केक बनेगा. नॉट ओनली केक, एनी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी फूड आइटम हम बनाते हैं, उसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होना चाहिए. अगर हमने शुगर ज़्यादा डाल दी तो क्या होगा, ज़्यादा स्वीट हो जाएगा. यस, कभी खाना बनाने में अगर हमने नमक ज़्यादा डाल दिया तो सॉल्टी हो जाएगा. तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन में भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है. प्रोपोर्शन जो है वो हमारा सेम होना चाहिए. Now everyone knows what is the formula of water. Water का formula है H2O. That means 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Right? Now, if अगर मैं कहूँ कि ये पानी रिवर का है या समुद्र का है या वेल का है, तो क्या ये जो फॉर्मूला है पानी का वो चेंज हो जाएगा हर एक में? नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ पे लॉ कौन सा फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, चाहे वो पानी कहाँ का भी हो, ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहता है. दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नॉट ओनली दिस,
salt is NaCl. yes, ये NaCl is sodium chloride, 1 atom of sodium, 1 atom of chlorine. सॉल्ट कहाँ का भी सॉल्ट हो, कहीं से भी लाओ, कौन सी भी पार्ट ऑफ इंडिया से लाओ, आउट ऑफ इंडिया से लाओ, ये जो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, दैट इज़ 1:1, 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ क्लोरीन. और वाटर का केमिकल फॉर्मूला पोर्शन है 2:1, दैट इज़ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion.